Yes, very good, Mr. Yes, very good morning, student. Welcome to all in physics class. Dear students, in previous class, you have studied about the chapter number 8 and it was gravitation. Now it is the turn of chapter number 7 and it is system of particles and rotational motion. तो मैं बात करूं छोटे से पार्ट की, दैट इज द पार्टिकल. व्हाट यू मीन बाय द पार्टिकल? पार्टिकल किसको कहेंगे? सबसे छोटा सा टॉपिक है पार्टिकल. इट इज वेरी स्मॉलेस्ट और इनफाइनाइटली नेग्लिजिबल साइज, नेग्लिजिबल मास एंड नेग्लिजिबल और शेप. मतलब हो रहा नहीं हो रहा? हाँ हो रहा ना. Yes, very good morning student. Welcome to all in physics class. Dear students, in previous chapter you have studied about the gravitation. Now it is the turn of next chapter and that chapter is chapter number 7. It is the system of particles and rotational motion. मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं एंड हाउ दे विल रोटेट, हाउ दे विल प्रोवाइड द रोटेशनल मोशन. सो इन दिस कंप्लीट चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शेयर वन स्मॉल डेफिनेशन एंड दिस इज द पार्टिकल. व्हाट यू मीन बाय द पार्टिकल एंड हाउ वी कैन एक्सप्लेन द particle. So particle is said that particle an object whose mass is infinite, but the size and internal structure can be neglected. Mass infinite means not only very large, not only very small. Mass may be anything, but the size is very smallest. Size structure can be neglected. मतलब जिसके मास को जिसके साइज को या जिसकी शेप को बिल्कुल इग्नोर या नेग्लेक्टेड किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये मेरे पास में क्या है, चौक है. चौक के एक पार्टिकल का साइज कैसा होगा वी डोंट नो, हमें पता नहीं कि साइज कैसा होगा, बट इट हैज मास. कम से कम इसका मास जरूर होगा. इनफाइनाइट का मतलब इसके मास का कोई फिक्स नहीं है कि कितना होगा. इनफाइनाइट का मतलब नॉट ओनली लार्ज, ऐसा नहीं कहते इनफाइनाइट को अनंत कितना होगा, डजंट मैटर. इनफाइनाइट कहते हैं इसके बारे में हम फिक्स नहीं कह सकते. क्लियर? सो दिस इज नोन एज अ पार्टिकल्स. पार्टिकल को कैसे डिफाइन करेंगे? एन ऑब्जेक्ट व्हिच मास इज इनफाइनाइट, जिसका मास तो इनफाइनाइट होता है बट शेप एंड साइज कैन नेग्लेक्ट और नेग्लिजिबल, मतलब बहुत छोटा होता है, उसे तो कहते हैं क्या बेटा, पार्टिकल. आफ्टर दैट द पॉइंट इज just a system of particles. In the system of particle we will say that if two or more means if many number of large molecules or large particles are assembled. अगर किसी भी सिस्टम में किसी भी एरिया में बहुत सारे पार्टिकल को कलेक्ट कर दिया जाए, many number of particles are in a system, that is known as the system of particle. So how we will explain about it? That is, it is collection of very large number of particles, more than one. एक से ज्यादा जितने पार्टिकल्स एक सिस्टम में कलेक्ट हो सकते हैं उसे कहते हैं बेटा क्या, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. नाउ नेक्स्ट बेसिक डेफिनेशन, इट इज द इंटरनल फोर्सेस. नेक्स्ट वन, internal forces. Internal forces means the forces by which molecules are internally attract or by tightly attract, that is the internal force. So the internal force is that the mutual force exerted by particle in a system on another, means this is the internal attractive force between the particles. It is also known as intermolecular attractive force, by which these particles are tightly packed. For example, this is the chalk and the particles of chalks are tightly packed with each other.
with each other. So this is known as the internal force. इसे हम क्या कहेंगे? Internal force. So next one is that the external force. The external force is that if a system is forced by any external agency, means when जब किसी भी बॉडी पर किसी भी सिस्टम पर बाहर से फोर्स लगाया जाता है, that is known as the external force. Means the outside force exerted on object by any external agency. मतलब किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी से किसी सिस्टम पर बाहर से फोर्स लगाया जाता है, दैट इज नोन एज द एक्सटर्नल फोर्स. जहां मॉलिक्यूल्स का अपना फोर्स लगता है, इंटरनल फोर्स. क्लियर? इज इट क्लियर? अब चलिए मैं आगे छोटे छोटे मैंने 2 3 1 2 3 एंड 4 वन मोर टर्म, इट इज सेड टू बी द रिजिड बॉडी. इसे और मैं आगे लिख देता हूं, फिर अभी छोटे छोटे डेफिनेशन करके चैप्टर स्टार्ट करेंगे. रिजिड बॉडी. ठीक, अब रिजिड बॉडी को एक्सप्लेन कर लेते हैं. चलिए हाँ, तो मैं बात कर रहा था किसकी? रिजिड बॉडी की. तो रिजिड बॉडी किसको कहते हैं बेटा? रिजिड बॉडी कहते हैं जिसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स, जिसे हमने इंटरनल फोर्स पढ़ा हुआ है, इंटरनल फोर्स से या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स से टाइटली पैक्ड होते हैं. उन्हें कहते हैं क्या? रिजिड बॉडी. उन्हें कहते हैं फ्लेक्सिबल रिजिड बॉडी, जिनके अंदर एक शेप होती है, एक साइज होती है. अब फिक्स शेप साइज का मतलब क्या है कि सपोज ये चौक है, चौक को जो शेप आपने दे दिया, इट विल नॉट चेंज इट्स शेप एंड साइज. ये चेंज नहीं करेगा, वी विल चेंज इट. तो कोई एक्सटर्नल फोर्स से तो हम उसकी शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज उसकी शेप और साइज अपने आप चेंज नहीं होती. मैं थोड़ी सी बात कर लूं, सपोज जैसे पानी है. अब पानी को हमने जिस कंटेनर में भर दिया, उसकी शेप एंड साइज से देगा, वो रिजिड बॉडी में नहीं आएगा. रिजिड बॉडी, मान लीजिए मैंने कहा पेपर है. अब पेपर को जो शेप एंड साइज मिल गया, दैट रिमेन्स सेम. बुक है, जो शेप एंड साइज मिल गया. टेबल है, चेयर है, सराउंडिंग्स में जितनी भी चीजें हैं, मतलब जिसमें भी बिल्डिंग है, ये सब क्या है? जैसा स्ट्रक्चर, जैसा साइज मिल गया, दैट विल रिमेन सेम. तो इसे क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी. इसे कहेंगे रिजिड बॉडी कहेंगे. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. चलिए अब मैं बात करता हूं आगे. अगला टॉपिक है सेंटर ऑफ मास. क्या? सेंटर ऑफ मास. ठीक है, देखिए अब कैसे है. जी, तो सेंटर ऑफ मास ए सिंगल पॉइंट विच मूव्स इन सेम वे in which a single particle having the total mass of system and acted upon by the same extended force would be moved. Means इसको क्या कहते हैं कि सपोज अगर कोई ये मैंने कोई बॉडी ले लिया, एनी इरेगुलर शेप का बॉडी है, उस बॉडी के सिस्टम के अंदर इनसाइड द प्लेन और एट द प्लेन सरफेस, मतलब या तो सिस्टम के अंदर या सिस्टम के बाहर कहीं भी, जहां पूरी बॉडी के हर मास का टोटल मास कंसंट्रेटेड होता है या बैलेंस होता है, बेटा उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं. मैंने कहा इस पॉइंट को मैंने कहा सेंटर ऑफ मास है. तो यहां से ये नीचे, ये ठीक है, ये और ये ठीक है, इस तरह से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये इस तरह से चलेगा. तो इस पार्टिकल का, दीज आर द पार्टिकल, सपोज m1 m2 m3 mn m4 m5 m6 m7. मींस एक ऐसा सिस्टम है जिनमें n पार्टिकल्स हैं, अलग अलग बहुत सारे पार्टिकल्स हैं. उन सब का अगर एक ही पॉइंट पर टोटल मास को हम कंसंट्रेट कर दें, या उन सब की स्पीड जब वो रोटेशन में है, जब वो मोशन में है, तो मोशन के टाइम पीरियड में सबका मास एक ही सिस्टम पर कहीं रोटेट हो जाता है, उसे सेंटर ऑफ मास कहते हैं. ठीक है, उसे सेंटर ऑफ मास कहते हैं. ध्यान रखना, ये सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास है. ठीक,
तो आप जानते हैं जैसे आपने एक स्फेरिकल बॉल है, फुटबॉल या वॉलीबॉल है, उसको देखा है कुछ स्टूडेंट्स कुछ लोग आराम से उसको एक फिंगर पर रोटेट करा देते हैं, तो फिंगर पर जो पॉइंट कंसंट्रेट होता है उसे कहते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है। या फिर और इजी लैंग्वेज में अगर आप इसे लिखना चाहें, आपको दिख रहा होगा आराम से सेंटर ऑफ मास किसके लिए, और करके मैं लिख देता हूं ए पॉइंट इनसाइड or outside the surface, inside or outside the surface, where whole mass of system to be concentrated called center of mass। उसे क्या कहेंगे बेटा, सेंटर ऑफ मास कहेंगे, ठीक। तो सेंटर ऑफ मास के लिए सिंपल एक फॉर्मूला है कि कोई भी ऐसा सिस्टम, कोई भी ऐसा पॉइंट जहां किसी भी सिस्टम का, किसी भी बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेटेड होता है, पूरा मास होल्ड होता है, बैलेंस होता है, उसे सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ये हमारा थोड़ा सा पढ़ा हुआ है किसमें, 10th स्टैंडर्ड में। मैं थोड़ा सा भी बता देता हूँ एक बार इसे। चलिए सपोज मैंने एग्जांपल दिया, एक चल रहा है आराम से, लेट ए सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स, मैं 2 पार्टिकल की बात कर रहा हूं, 2 पार्टिकल्स ऑफ masses m1 and m2 at positions r1 and r2 respectively, ठीक है। इन xy plane, then there उनका सेंटर ऑफ मास कहेंगे। कैसे बेटा, देखो मैं डायग्राम बना लेता हूं, इधर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस बेटा, दिस इज वाई एक्सिस। सपोज इट इज in xy plane, put this is the center at position vector capital R। सपोज फर्स्ट पार्टिकल, मैंने कहा ना 2 पार्टिकल्स m1 and m2, फर्स्ट पार्टिकल ऑफ मास m1, सेकंड पार्टिकल ऑफ मास m2, if its position vector is r1, second position vector is r2 and r2 and their position vectors आ गया। उसके बाद मैंने कहा कि इनके बीच का बेटा सेंटर ऑफ मास प्राप्त करना है, तो दिस इज द सेंटर ऑफ मास, इसे सेंटर ऑफ मास कहेंगे, इसे सेंटर ऑफ मास कहेंगे। ये ओरिजिन के। देन हाउ वी विल रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द 2 पार्टिकल्स ऑफ द 2 सिस्टम, और कैसे कहेंगे इसको, सेंटर ऑफ मास कैपिटल आर से लिखेंगे, आर सीएम सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 r1, position of first particle m1 at r1 plus m2 r2 divided by m1 plus m2, this is the center of mass, balancing point of center of mass where whole body is to be concentrated, उसे सेंटर ऑफ मास कहेंगे। ये कैपिटल आर, ये r1, ये r2 आपके पास में, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये सेंटर ऑफ मास कहेंगे इसको बेटा, क्लियर। अब इसके बाद में बात कर लेता हूं r1 r2 r3, मतलब सॉरी 2 पार्टिकल्स के बीच की। अगर बेटा इसी को मैं ये कहता कि सपोज इसको एंड पार्टिकल्स के लिए मान लेते हैं, चलिए ये तो आ गया वेयर
प्लस m2 इक्वल टू कैपिटल M, यानी टोटल मास भी कह सकते हैं पूरे बॉडी का। ठीक, तो इसे हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सब्स्टिट्यूट करते ही देखो क्या आ जाएगा, m को बेटा यहां दूंगा मैं RCM सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 डिवाइड बाय कैपिटल M लिख दिया बेटा, और कैपिटल M को इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो इट कैन आल्सो MRCM इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2, ये इसे कहेंगे क्या, सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास, क्लियर, ये कैपिटल M के साथ इधर आ गया। सो दिस इज नोन एज द सेंटर ऑफ मास, इसे हम सेंटर ऑफ मास के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे, सेंटर ऑफ मास के नाम से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये दो पार्टिकल के लिए मैंने सेंटर ऑफ मास का कंटेंट और टॉपिक लिया, आप इसे पढ़ लेंगे, उसके बाद में कल से आगे के कंटेंट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। सॉरी बेटा, बनाते बनाते वीडियो बंद हो गया, इसलिए थोड़ा सा शायद बीच में हो सकता है गैप हो गया हो। तो मेरा कल जो टॉपिक है, अगला कंटेंट है, वो है सेंटर ऑफ मास फॉर एन पार्टिकल्स, फॉर एन पार्टिकल्स। उसमें क्या होगा कि अगर कोई हमें ऐसा सिस्टम मिल गया जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल m1, m2, m3, m4 एंड सो ऑन mn, और सबका अलग अलग पोजीशन है r1, r2, r3 एंड सो ऑन। जैसे मान लो एक, यस बेटा, बार बार वीडियो गड़बड़ होने से एक सेंटर ऑफ मास का टॉपिक है। तो सेंटर ऑफ मास किसको कहते हैं, जैसे n पार्टिकल का कोई भी सिस्टम जिसमें अलग अलग पार्टिकल r1, r2, r3, rn पोजीशन पर सिचुएटेड हैं, और उन सबका एक बैलेंस पॉइंट जिसे सेंटर ऑफ मास Cm कहेंगे। इस सेंटर ऑफ मास के लिए फॉर्मूला आएगा RCM इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 प्लस mn/rn अपॉन m1 प्लस m2n सो ऑन। ये किसके लिए होगा मेरे पास में, n पार्टिकल्स के लिए, क्योंकि दो पार्टिकल के लिए पढ़ा था m1r1 प्लस m2r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। आगे चलता हूं, मैंने m1 m2 mn को तो कैपिटल M लिखा, इस पूरे सिस्टम को mi/ri लिखा। ठीक है, ये समीशन आ गया। अब कैपिटल M को इधर मल्टीप्लाई किया तो m और RCM इक्वल टू आ गया। ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ मास आ गया। अब मैं भी आगे इसको चलता हूं, थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स की बात करेंगे। सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस, देखो एक्सिस में कैसे लिखेंगे, ये तो लिखा था 3 डायमेंशनली 2 डायमेंशनली। देखो इन टर्म ऑफ इन कार्टेशियन, सॉरी अलोंग एक्स एक्सिस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस, इसी को कहेंगे एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कहते हैं बेटा इसको, जब हम बात करते हैं केबल और केबल एक्सिस की। मान लो कोई रॉड है, रॉड तो एक ही एक्सिस में रहेगा। ठीक है, दूसरा मैंने कहा अलोंग y एक्सिस, यानी सेंटर ऑफ मास ऑफ अलोंग y एक्सिस m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 आ गया। ठीक है, तीसरा आएगा फिर z एक्सिस के लिए, z के लिए कहेंगे बेटा इसे z सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 z1 प्लस m2 z2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 आ गया। ठीक, ये अलोंग x एक्सिस आ गया, अलोंग y एक्सिस आ गया, अलोंग z एक्सिस आ गया। तीनों इक्वेशन आ गई, 1 2 और ये 3 इक्वेशन आ गए। ठीक है, तो इस तरह से हम सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले को इन x प्लेन, इन y प्लेन, इन z प्लेन और कंबाइंड इन एक्स वाई प्लेन तीनों टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने इस कंटेंट में, इस टॉपिक में अभी जो पहला वीडियो आपको भेज रहा हूं, इस फर्स्ट वीडियो में
पहले छोटे छोटे दो कंटेंट लिए, पार्टिकल क्या होता है, इंटरनल फोर्स क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, रिजिड बॉडी क्या होता है, एंड आफ्टर दैट फर्स्ट कंटेंट इट वाज सेंटर ऑफ मास, मतलब बॉडी के अंदर वो पॉइंट जहां पूरे सिस्टम का मास कंसंट्रेटेड होता है, बैलेंस होता है, या एक जगह पर ही अबाउट ओन एक्सिस रोटेट कर सकता है, उसे क्या, सेंटर ऑफ मास, जिससे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूले दिए, ठीक है। इनिशियल फॉर्मूला क्या था, m1r1 + m2r2 / m1 + m2, उसके बाद एंड पार्टिकल के लिए m1r1 m2r2 + and so on, दिस फॉर्मूला अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, अलोंग z एक्सिस। तो इस तरह से हमने एक छोटा सा फॉर्मूला कंप्लीट किया सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। हम अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए फिर भी अगर कोई दिक्कत परेशानी किसी को आए तो आप मेरे इस नंबर पर मेरे से संपर्क करके पूछ सकते हैं 9462338486, ठीक है। इस नंबर पर आप मुझे पूछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो शायद चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें आप जल्दी से, मैं इसे पूरा कर रहा हूं, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।